exist singly, you will never be able to exist in a single mode. You always have to collaborate and work. Today you cannot rely, it's simply like, today you cannot rely on one source of income. You need to have multiple source of income. You will never go out of business, and you will never have to think about what will happen next. But you need to build on that. So today, if men and women don't start coexisting, we really will not be able to head out anywhere in the future. Okay. Mr. Hari has some comment. Please, Hari. Hello. Yeah. Yeah, thank you. So, I just want to go back to previous day, जहाँ पे कुछ points I wanted to reply, but I was not able to answer those points. So, एक था कि सौरभ जी ने मुझसे पूछा था कि why is that Kerala is having the more having more female than male, like sex ratio is more than anywhere else in the state in our country. So इसमें मैं एक चीज, I want to make a counter question: why it is less in other states? Why it is less in Haryana? Why it is less in UP or MP or Bihar? तो ये question आप खुद पहले means सोचिए कि let's introspect what wrong we are doing. Then only we can come to a solution. अगर हमें पता ही नहीं है कि गलत कहाँ हो रहा है, and we are discussing on the same thing कि चलो Kerala is there the sex ratio is good, like women are more. So the main thing is मैंने जो practically what I have seen is the acceptance. वहाँ पे जो गर्ल को जो accept कर लेते हैं society में, that is to much greater extent. Like जो यहाँ पे मैंने जो I feel missing in some parts of our country, जो other parts है वहाँ पे वो missing है, but Kerala में ऐसा नहीं होता है. Both the gender are treated as equal. So this is the first thing. So equality in the sense you can introspect कि यहाँ पे where the dowry cases earlier used to be very less. Even now, dowry system is not at all prevalent in our like state in Kerala. So dowry ka jo hai, there is no system like that. But yes, there is some other things that is as per their wish of the parents of the girl. They can do whatever they want for the marriage. So there is no demanding and nothing like that. Or again उसमें और भी कुछ points थे. I said like about inequality, like economic inequality, which is the major cause, which also leads to a gender inequality. So economic inequality in the sense जो ये जो crime मैं बोल रहा था, so जो कैसे crimes वगैरह हो रहे, rapes and all. So this is mainly because वो जो section है, जो गांव के जो लोग हैं, they are much उनको ये सब नहीं जचता है. They cannot adjust so easily with all those things, because when we come to city, gender equality के नाम पे the girls, they want to wear all the dresses that boys wear. छोटे छोटे ड्रेस पहनना है. This is even that is a case कि वो भी वो बोल सकते हैं कि मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, this is my right to wear because I have a choice of my own. No doubt you have a choice, but जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, then it is becoming problem कि कुछ बाहर से लोग आए जहाँ पे जिन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है. So they get too much of excited and उनका पता नहीं, means there is a psychological गड़बड़ हो जाता है and they can do anything. So basically ये एक चीज था जो मुझे बोलना था. और again one of our female like participant, she said like this comes through watching porn. So it's not true. It is not through porn, or yeah, definitely porn से जो होता है कि थोड़ा बहुत it is exaggerated things are shown in that, but it is not really true that you watch the porn and you rape the girl next day or you rape someone else, right? So yeah, it is not the only reason. It might be one of the reason, but I don't completely agree with that, क्योंकि as I told, like अगर
कोई छोटे कस्बे का आदमी है या द विलेजर्स, तो इनके पास तो इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं होता है कि दे कैन सी एवरीथिंग. So still I feel like it is one of the cause, but it cannot be the only cause or the main cause as such. और ये एक चीज मुझे ऐड करना. एंड वन मोर थिंग वाज देयर, या दैट्स इट. लाइक एजुकेशन वाइज, या इतना ही मुझे ऐड करना था अभी फिलहाल. ठीक है, गौरव अग्रवाल wants to say something. Please, गौरव. Okay, finally. सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं बारी बारी से. वही आज और कल का टॉपिक काफी हॉट टॉपिक है. काफी लोग बोलना चाह रहे हैं. अच्छा, मेरा एक्चुअली थोड़े ऑब्जर्वेशंस हैं. मैं जैसे कि मैं हमेशा पॉजिटिव और आज की बात करता हूँ, ज्यादा पुराने दौर पे नहीं जाता. तो सबसे पहले तो मैं आज की अगर बात करूं तो आज अगर हमारे टीम की बात करें, जो मेरी कंपनी है, उसमें 70% फीमेल स्टाफ है. और मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि फीमेल स्टाफ मेल स्टाफ से ज्यादा एफिशिएंट है और बेटर काम भी कर रही है हर सेंस में. ठीक है. सेकंड चीज जो ये एक वन पार्टिस किसी ने बोला कि भाई फीलिंग्स मेन की बहुत ज्यादा ब्रो बॉन्डिंग होती है और फीमेल की जेलसी एक्सेट्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो तो मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ. उसका सिंपल सा कारण ये है कि भाई मेल और फीमेल इसमें कुछ जेंडर का कोई लेना देना है ही नहीं. ये फीलिंग्स की बात है भाई. फीलिंग्स, कंपेटिटिव फीलिंग मेल में भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. जेलसी की फीलिंग मेल में भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है. सो यू नो वी शुड नॉट जनरलाइज इन अ वे कि भाई फीमेल की ऐसी फीलिंग ज्यादा है और मेल की फीलिंग ऐसी कम है. सो मेरा ये मानना है कि फीलिंग्स है, चाहे वो यू नो दैट इज नथिंग टू डू विद द जेंडर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो है जो आज के दौर की अगेन मैं अगर बात करूं, मैं अपनी कंपनी में, जिसका फर्स्ट कंपनी थी मेरी, कैसे बदलाव आ रहा है मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ. हम लोग सबको, जैसे हम लोग यूनिलीवर का ऑडिट कर रहे थे, हमें पूरे वर्ल्ड ग्लोबल का यूनिलीवर का ऑडिट का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था हमारी कंपनी को. तो हम सबको चूज किया जा रहा था कि भाई इसको डरबन भेजना है, इसको नीदरलैंड्स भेजना है. तो गाइज आप लोग सब शॉक्ड हो जाओगे सुन के, हर जगह पे जो बढ़िया कंट्रीज थी वहां पे फीमेल्स का क्लस्टर बनाया गया और उन्हें बेटर प्रेफरेंस दी गई कंपेयर्ड टू मेन. और मतलब जो लॉन्डो का ग्रुप होता है, सो कॉल्ड लड़कों का ग्रुप होता है, उन्हें थोड़ी सी रिलेटिवली डेवलपिंग कंट्रीज में भेजा गया. जैसे मान लीजिए अफ्रीका में भेज दिया, या बांग्लादेश में भेज दिया, श्रीलंका में भेज दिया. और जो लड़कियों का क्लस्टर है उन्हें नीदरलैंड्स मिला, न्यूजीलैंड मिला. सो दिस इज अ वेरी वेरी फाइन एग्जांपल, जो कि मैं तो उल्टा डिस्क्रिमिनेशन हो गया. ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन ही है. तो ये मैं जस्ट एक बताना चाह रहा हूँ कि हाउ द टाइम्स आर चेंजिंग एंड सॉल्यूशन, कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन क्या है. अगर आप हर एग्जांपल मेरे देखोगे तो उसमें एक चीज जरूर कॉमन था, एडुकेशन. कि भाई आज जो हमारे यहाँ स्टाफ भी काम कर रहे हैं या मेरे साथ जो कलीग्स भी थे, सारे एडुकेटेड थे. चाहे वो छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज से भी आ रहे थे, सीए किए हुए या नॉन सीए या बीकॉम भी. उन सबका एक चीज जरूर कॉमन था, उनमें कोई ना कोई एडुकेटेड थे सारे के सारे. सो यही सॉल्यूशन है सब चीजों का, कि भाई एडुकेशन. और इवन जो हरि जी ने बोला कि भाई एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ पे ज्यादा है, केरला में ज्यादा है. केरला में एडुकेशन भी सर सबसे ज्यादा है, लिटरेसी भी सबसे ज्यादा है. तो सब चीज का सॉल्यूशन यही है, सोच तभी बदलेगी जब भैया एडुकेशन बढ़िया से होगा. So it is all interconnected with the kind of education that we bring in the society. So सबसे पहला जो मूवमेंट होना चाहिए, बॉन्डिंग वगैरह तो बाद की बात है. सबसे पहले अगर एडुकेशन राइट वे में हम कराने लगे, सब कुछ हर तरीके से हम कराने लगे, तो नेचुरली बहुत फर्क पड़ेगा. जैसे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, हम लोग जैसे यहाँ पे एक मूवमेंट चलाते हैं अपनी एरिया में, 150 बच्चियों को हम पढ़ाते हैं. सो यू विल नॉट बिलीव, उनका जो टैलेंट है, लड़कियों का टैलेंट है, लड़कियां रेस में लड़कों से बहुत आगे है. एंड दीज आर वेरी वेरी स्ट्रीट किड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो लड़के लड़कियों का तो भेदभाव तब आएगा आप अगर शुरुआत से ही वो नींव डाल दोगे कि नहीं भाई एडुकेशन सबकी बराबर है, सारे गिफ्ट्स बराबर मिल रहे हैं, उनको स्टैंडिंग बराबर दे रहे हो, लाइन में आगे पीछे कुछ नहीं है. तो नेचुरली वो चेंज हमें उसी तरीके से वी नीड टू ब्रिंग दैट चेंज बाय आवरसेल्व्स. Yes, Simran, please. Please unmute yourself. Yeah, please.
Thank you so much for giving me to speak. Actually, sir, जैसे अभी बात चल रही थी बहुत देर से पीछे, तो I observed that कि किसी person ने ये बोला था कि सामने वाले मतलब girls के अंदर jealousy and all. I also disagree from this point due to the reason of right now I am currently in BTech and we are all studying together. So jealousy in male are much more extra than female due to the reason because of they are competitive by nature. According to me, if in our college around 13 there are total 13 females and all 13 females are always together, and when I talk about the boys group, they are just for just kidding and everything, they are not by emotionally connect together. There are some male group also which are emotionally connected, so everything depends upon feelings. We can't judge about this कि girls का group है तो वो jealousy feel करेगा. It's not true. And sir, जो problem आती है corporate world में, according to me, the first problem is any corporate world, any school, any tuition, any college, everything, even though any event, there is one problem which is very common: sexual harassment, which is very common. I hope so. There are many girls in whole world and no one girl जिसने एक बार भी sexual वो harass ना हुई हो. Even though if I am talking about myself, so yes, I am. So there are no one की जो sexually harass ना हुआ हो. And sexual harass करने वाले जो persons होते हैं, they are boys. And even they are educated too. But वो चीज आ ही जाती है. I don't know क्यों वो चीज आती है जिसकी वजह से girl को कहीं ना कहीं low feel करना पड़ता है. And second thing, according to me, there is one more problem which is very common. It is like कि जो leaders होते हैं, जब कोई भी girl कुछ काम कर रही होती है and उसी जगह boy काम कर रहा होता है, they are very trustful towards boy as compared to girl. वो जल्दी से boy के साथ deal करना ज़्यादा पक्का समझता है as compared to girl. I don't know why. Because एक girl more मतलब ज्यादा सोचती है किसी चीज को लेके. इफ तुम उसे गर्ल को काम दोगे तो वो काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा. इफ वही काम बॉय को दिया जाता है तो वो कम ऑर्गेनाइज्ड होता है. बट जो लीडर्स का माइंडसेट बहुत प्रीवियस सेंचुरीज से हुआ हुआ है, मे बी या प्रीवियस कोई डेटा होता होगा इनके पास, क्या है आई डोंट नो. बट अभी तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लीडर्स जल्दी बिलीव नहीं कर पाते गर्ल्स के ऊपर. इवन तो अगर हम अपनी टीचर्स के बारे में बात करें तो दे आर नॉट. एंड अकॉर्डिंग टू मी, स्पॉन्सरशिप्स और इन सब में भी गर्ल्स के ग्रुप जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं स्पॉन्सर्स करने के लिए. बस गर्ल्स को इसलिए भेजा जाता है ड्यू टू द रीजन ऑफ देयर पर्सनालिटी, एंड बॉयज को इसलिए भेजा जाता है बिकॉज वो डील करने में अच्छे होते हैं. तो हाउ कैन यू जस्ट दिस थिंग? अगर बॉयज मैनेज कर सकते हैं तो गर्ल्स आल्सो कैन मैनेज. so there are two and if again giving one more thing which is I don't know कि मुझे ये चीज बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, but there is one more thought after listen everything that जैसे अभी कहा गया कि जो ये लोंडो का ग्रुप होता है एंड ऑल, तो इसके अंदर हमेशा जैसे गर्ल एंड बॉय साथ में बैठे हैं तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत आता है टॉप के अंदर. Everyone knows the non-veg jokes if they are above 18, even though the memes, everything. If they are girl, if they are boy, everything. तो but वही चीज जब if वो लड़कों का ग्रुप बैठा है तो वो चाहे वो लड़की के बारे में कुछ बोल रहे हो चाहे वो लड़के के बारे में बोल रहे हो, तो इट्स वेरी ओके. बट जैसे ही उनके बीच में एक गर्ल आ जाती है दे आर लाइक हम तो बिल्कुल चुप है, वी आर सन. तो वो चीज की प्रॉब्लम हमेशा एक गर्ल को फेस करनी पड़ती है. उस टाइम फाइन बॉयज मजाक बनाते हैं, कुछ भी जो भी चीजें करते हैं उससे हमेशा प्रॉब्लम गर्ल को होती है. वो इमोशनली बहुत जल्दी परेशान हो जाती है जिसकी वजह से वो अपना फोकस काम के बजाय इन सब चीजों से डिप्रेशन में आना. अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कभी भी जो पार्शियलिटी होती है बॉयज के लिए बहुत ज्यादा गलत है. अगेन ड्यू टू द रीजन ऑफ पर्सनालिटी, मेरे हिसाब से इंडियन जैसे ये बहुत मतलब एक सेम टास्क को करने के लिए बॉय को जो पे कर रहा होगा एक कंपनी वो हमेशा कम होती है एंड वही सेम टास्क गर्ल को ज्यादा दिया जाता है.
इवन दो गर्ल्स के पास ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है, उनके फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स कर दिए जाते हैं, उनके लिए कैब सर्विस अलाउड कर दी जाती है, तो डिस्क्रिमिनेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. इफ तुम ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्टिंग से ही नहीं करोगे तो वो चीज डेवलप ही नहीं होगी, दिमाग में आएगी नहीं कभी. तो इफ तुम एजुकेशन आज के टाइम पे इतनी ज्यादा फैली हुई है, तो एजुकेशन के अंदर स्टार्टिंग से ही, बिगनिंग से ही बच्चों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए. देयर इज नो कलर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज नो टॉयज डिस्क्रिमिनेशन. तो चीज का बिल्कुल बेसिक खत्म हो जाएगा तो वो आगे तक डेवलप होगी नहीं. एंड वो धीरे धीरे जब स्टेज वाइज हम बढ़ते जाते हैं तो वो चीज आगे एक बूम सी चीज ले लेती है, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है. तो बस. Okay. Sejal, you have some comment, please. And then Saurabh. Yes sir. ठीक है, हाँ बोलो. Okay. सौरभ सर और विशाल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि Okay. डू यू थिंक कि क्लोथिंग रियली अफेक्ट दीज थिंग्स? आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्पीकर, बट आपके Mr. हिसाब Hari. से हाँ. या वो छोटे छोटे कपड़ों वाली बात कहाँ तक सही है? अच्छा, मैं ये आंसर ले सकता हूँ, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ. बोलो बोलो. अच्छा, Thanks for taking the burden. नहीं ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना. मैं आंसर दे देता हूँ. हाँ ठीक है. अच्छा, Yes, Gaurav. सेजल ने पूछा राइट? Yes. अच्छा, सेजल, पहला बात तो जो उनका पॉइंट था ना कि कपड़ों से रिलेटेड, उन्होंने बस ये चीज बोला, उनका कहने का मतलब था कि जो गांव से जो आते हैं शहरों में, और जब वो देखते हैं जो उनका नई चीजें ये सब देखी हुई है, तो जब वो ये सब चीजें देखते हैं, दे गेट सॉर्ट ऑफ वो अलग माइंड जोन में चले जाते हैं. देन दे एंटर इनटू डूइंग द ड्यूबियस जो एक्ट्स होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, वो तब ये लोग करते हैं. पहली बात तो ये मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये जो हरी जी जो ने कहा उनका वो मतलब था. और दूसरी बात, डायरेक्टली आपका आंसर अगर मैं करूं, जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई कपड़ों से कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता, भाई कपड़ों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी वापस आंसर पे जाऊंगा, ये सोच इंसान की कैसे भी बदल नहीं सकते आप. अब कपड़ों को अगर आप देखोगे, भाई जो जिसका सोच नीचा है वो वैसा ही रहेगा. कपड़ों से उसका जजमेंट नहीं हो सकता, उसका माइंड वो नीचा है, उसका कपड़ों का नीचा या लेंथ से ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है. जस्ट सोच और उसकी बात है. ये आप लोग ऐड कर सकते हो. मैं थोड़ा सा छोटा सा ऐड कर देता हूँ. एक्चुअली जैसे जो बहुत शुरू में हमारा स्टार्टिंग डिस्कशन था yesterday, कि the way we grow up, the way we have seen our mothers, the way we have seen our sisters, the way we have seen our other women as upbringing, ठीक है, उससे अचानक से कुछ अलग दिखना शुरू हो जाए तो डेफिनेटली उसका कुछ असर तो पड़ेगा. नेगेटिव पॉजिटिव इज अ डिबेटेबल टॉपिक, जो भी है. सो इट्स लाइक दैट. Abhishek, you said something? Can I add something? Yes, Pritipa, please. आप में से दिल्ली में कनॉट प्लेस कुछ लोग तो गए होंगे. तो जब हम कनॉट प्लेस में, आपने देखा होगा वहां पर जो बाहर के स्टेट से कुछ बेगर्स होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो वो किस हालत में होते हैं. मतलब see, I'll say that brutality in sexual harassment is very much related to the morals. I mean, it's all morals also to a very large extent. तो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है. So how they sustain is they get to kill their hunger. They are on drugs. तो उस सेक्शन से आप morals क्या expect करोगे? तो मतलब they do what they like. उनको यही नहीं पता कि what is wrong and right. You cannot expect a wrong and a right on an empty stomach. कुछ होने के लिए भी नहीं होते हैं. Exactly. You cannot expect morals on an empty stomach. आपका बच्चा भूखा वहां बैठा होगा, you cannot expect morals. So that is a very small section, but it is a very painful thing. I'm not, it's barbaric, but that explains कि जो brutality आती है, that comes from that section. So that is, I think, not in the frame of our discussion also. So I'll just drop it here. So वो एक extreme हो जाता है. Correct. Yes, sir, please. मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा. सबसे पहले सिमरन जी के पॉइंट पे जो उन्होंने बोला था कि जो लीडर्स होते हैं वो, उन्होंने जनरलाइज स्टेटमेंट दिया, मैं उसको काउंटर करूंगा. उन्होंने बोला कि लीडर्स जो हैं वो लड़कों को प्रमोट करते हैं या लड़कों को ज्यादा अच्छा काम देते हैं.
सो मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैं लीडर हूँ या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर आई रन अ कंपनी और मेरे कंपनी में लेट्स से 5 डिपार्टमेंट्स हैं. उस 5 डिपार्टमेंट का जो मोस्ट क्रिटिकल डिपार्टमेंट, आई डोंट वांट टू नेम दैट, and which is the most critical both in terms of saving cost and where lots of commercials are involved, and for which I need the most trustworthy part, that is headed by a woman. So generalize नहीं करना चाहिए, ये सब लीडर्स ऐसा नहीं करते हैं, ये इंडिविजुअल ओपिनियन है. मुझे ट्रस्ट, एंड दिस इज अगेन नथिंग टू डू विद जेंडर. वो लड़की है इसलिए शी इज नॉट हेडिंग द डिपार्टमेंट. वो सबसे ट्रस्टवर्दी है इसीलिए वो. And to tell you honestly, my wife is also part of my organization, but she does not head that department, which is the most critical. So it has nothing to do with gender. ये number 1 point. ये मैं भी agree करूँगा. When I give things, I don't give based on gender, but who can do it better. Yes sir, please continue. Second point. Second सवाल ये पूछा गया कपड़े के ऊपर कि शॉर्ट ड्रेस और वो सब की वजह से मेन थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं. I would not like to comment on that, but I would like to give a reason why it happens. It happens. That is why this point is getting raised. It happens. और ये बहुत सारे previous debates में, न्यूज में, हर जगह ये है कि लड़कियां क्यों छोटे ड्रेस पहनती हैं. मेरे ख्याल से the reason is ये प्रॉब्लम वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है, बिकॉज वहां पे सारे छोटे ड्रेस पहनते हैं. वहां पे नहीं होता है बिकॉज वहां पे सेक्स इज नॉट अ टैबू और सेक्स वर्ड इज नॉट अ टैबू. यहाँ पे तो हम 3 लेटर वर्ड ही नहीं बोल सकते हैं. बच्चा अगर एफ वर्ड बोल दे और SEX बोल दे तो भाई पता नहीं बवाली हो जाएगा इंडिया में. तो आई थिंक सेक्स एजुकेशन नहीं है इंडिया में, एंड इट इज अ टैबू कि अरे यार वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज अ टैबू. पीपल कैन नॉट डू लव मैरिज, दैट इज अ टैबू. तो यार ये चीज छोटे ड्रेस तो मतलब बहुत ही मतलब हमने बहुत दूर की बातें कर दी. अभी तो हम लव मैरिज ही नहीं करवा पा रहे हैं, लोग भाग के शादी कर रहे हैं. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड लोग भाग के क्यों शादी कर रहे हैं. सो मैं ये पॉइंट बोलूंगा कि अगर हम सेक्स एजुकेशन दे दें और ये सेक्स वर्ड से ज्यादा घबराए नहीं और भागे नहीं, तो आई थिंक दिस इज द सॉल्यूशन टू a lot of things. Then one of the speakers said कि एजुकेशन दे दो. आई थिंक गौरव said or someone said कि एजुकेशन इज द क्योर. माय फ्रेंड, एजुकेशन इज द क्योर, बट आप 1.3 बिलियन को कैसे एजुकेट करोगे? रिसोर्सेज ही नहीं है एजुकेशन के. इंडिया इतना वास्ट कंट्री है, लोग पोलियो ड्रॉप तो दे नहीं पा रहे हैं घर घर जाके. आप एजुकेशन घर घर जाके कैसे दे दोगे ये बता दो मुझे. बोलना बहुत आसान है कि एजुकेशन दे दो. You have to raise it. I'm not saying education is not the solution. That is वो तो आई थिंक implementation पे आ गया ना. This is the solution. We should find how to get it done. Yes. ठीक है. Education. Can I intervene here? Let me summarize. यहाँ थोड़ा सा confusion हो गया. So I think what Saurav is talking is more on the implementation. Implementation हो पाएगा नहीं हो पाएगा. But I think today we are not talking about कैसे implement होगा नहीं होगा. Today we just talking ये हो सकता है. And like Saurav rightfully said कि education है तो उसके अंदर वो sex education भी होना चाहिए और बहुत कम एज से होना चाहिए. Right? वो taboo नहीं होना चाहिए. I don't know. I mean like where you want to settle on this. But that is also one problem कि वो जो बताया नहीं जाता है somehow वो अचानक से जब पता चलता है तो वो it becomes a big thing for a lot of people who are not used to listening though. Yes, Priti ma'am, please finish what you're saying. Yeah, I mean whatever you want to add, please. Yeah, I was telling, okay, if it's in implementation and not in the framework of our discussion, we will not touch on it. But see, if there is an issue, it has to be raised and then only it can be addressed. So you cannot keep mum about an issue that you can openly see. That said, rest, I mean, it has to be education, and above that, I don't know. I mean, if it boils down to physical education, sex, then why not legalize prostitution also? There'll be a sharp decline. Yeah. Yes, Rachana, you want to add something, please? Yeah. Yes, please. So things that I want to add is, firstly, if we are talking about clothing, the clothing has to be dressed responsibly, whether it is men or women. They both have to dress responsibly of what you are dressing and how are you dressing and how are you carrying whatever
whatever you're wearing. If you are comfortable sporting yourself without a t-shirt in a public, that is up to you, and you are taking it ahead. And if you're exposing something, people will see what you are showing it to them, because you're doing it to get that kind of an attention. So, and you like it that way, all right? And I don't want to comment on, and don't take it in a sense that it is ki woman पहन रही है तो वो अपना expose करना चाहती है, because you feel good in that skin. You feel good कि अगर मैं अपना t-shirt खोल के या should I wear a small dress and go out, you are comfortable with it, you are able to carry it. So take that responsibility of dressing on yourself. So, you know, the first problem that can actually solve is taking that responsibility on yourself of what you are dressing. How are you communicating with the other? Are you expect certain kind of respect from the other side. Are you rendering the same? So that self-responsibility, the concept of the self-responsibility has to come in with everyone. Today, I think you take the pub culture in Calcutta. You go out, I mean, how many women would you see them dress? I think I have seen women dressed in the skimpiest of the clothes ever in life. But they all are comfortable, and they enter into a space which is absolutely crowded. And okay, so I don't want to name any kind of a bars, but they enter into a space where there is not even enough space to breathe, and stand there and wear this skimpiest, but they are comfortable with what they are wearing. Mm-hmm. If you are conscious, if you're not conscious about what you are wearing, and you are not confident about carrying what you're wearing, then don't wear it. So it's about firstly being self-responsible. My concept is on clothing, is whether it is clothing, whether it is respecting, whether having another view on anybody, it is about firstly respecting yourself. Secondly, Preeti, on the concept ki unko sikhana padega, unko batana padega. Yes, unko sikhana padega, batana padega. There are large number of Anganwadis, there are large number of village blocks, administrative works which goes on. There is a lot of awareness programs which goes on with these people. These people at this level, at this juncture, are starting online school. So I am sure there is not reduction in the area where the government is also trying to reach out to people and educate them कि education भी important है. तो it is about how are you thinking. हर एक community का दायरा होता है, हर एक community का सोच होता है, हर एक लोग का ही होता है. So India is a very very vast, and I think अगर आज हम अगर आप एक simple सी मारवाड़ी community भी लेंगे, तो उसके अंदर में कितनी सारी चीजें आपको निकलने पड़ेंगी कि कोई जैन है, कोई ओसवाल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है. सबका रहने उठने खाने का तरीका अलग होता है. तो अपनी एक खुद की responsibility लेना is very very important. And if it is in anybody's ours capacity, if you can educate 10 people in your own vicinity, we are what? How many of us are here? We are 19. We already reach 190 people. Can I say something, Vishal? Yes, please. Yes, please. Yeah. So my point of view on that is, I agree with many of the things which was said, that it's my body, my dress, my car, my house, whatever I want to do, it's up to me. Nobody else has a right to judge me on that, what I wear, what I look like, and who I am. That freedom is a very, very fundamental right we all need to have, and that should be respected. So men or women, both. But the challenge here is, in the context of topic we're discussing, is that that right is not offered or not allowed more often to a woman or girl than to men. Men have the right by default. और लड़का कुछ भी कर सकता है. किसी ने sexual harassment भी कर दिया, molestation भी कर दिया. ओ तो किसी ने say किया तो boys are boys, तो लड़के ऐसा करते ही हैं. And other thing is कि गांव में बहुत ज़्यादा होता है. कि ये नहीं कि केवल दिल्ली और बैंगलोर सेक्टर्स में, विलेजेस में सबसे ज़्यादा harassment होता है. And दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में और ज़्यादा होता है. कहाँ पे ये बेस्ट है जिसका सॉल्यूशन है? कुछ एडवांस कंट्रीज हैं जहाँ पे कहीं-कहीं पे तो सेक्स म्यूजियम्स भी अलाउड है इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब दिखते हैं, आते-आते दिखते हैं. प्रोस्टिट्यूशन भी अलाउड है.
फ्रीडम होना चाहिए लोगों के पास, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि my freedom stops when I start touching you, मतलब मेरा बॉडी मैं जहाँ ले जाना चाहूँ जो करना चाहूँ, लेकिन the moment I am touching you तो आप I'm encroaching your boundary, and this boundaries is a very important idea. You have all the freedom, boys, girls, everybody should have all the freedom. The only thing is we should respect others' boundaries. मैं अपने freedom को exercise करने में किसी और की freedom को encroach कर रहा हूँ या कर रही हूँ, both are, I think, objectionable in mind. Yes, Priti ma'am, please. Yeah, I absolutely agree. I mean, I think पूरी discussion में कल और आज में 2 points आए हैं. One is education, and the second one that I could think of was that अपने आप को, मतलब it starts from us, not a man or a woman, anyone. It has to come from within us. So we have to educate ourselves, and we have to educate the society also. So anything else that can be done, maybe at, since we are here, we are doing a GD, we are doing a brainstorming. So anything that may be at a ministerial level that can be done. Yeah. So let me add a bit point. Sejal can add. I think all this happens from the thought. And one more thing is that people start to, let's say, imagine things, and then some of them execute, and then things go on. Whatever. Yes, Gaurav, please. You wanted to add? Yes. Okay. So जो solutions जो सामने आ रहे हैं with respect to education and self awareness, उसके implementation probably that is not a part of our scope today. वो probably एक और GD हो सकता है, discussion हो सकता है. But to add to it about the implementation, I will answer this with another question. जब पूरे भारतवर्ष में एक बार में demonetization 500,000 के नोट बंद हो सकते हैं, साथ में पूरा नेशन जब एक बार में लॉकडाउन हो सकता है, तो साथ में पूरा नेशन, साथ में एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? और ऑनलाइन इज द मीडियम. हम सब यहाँ पे ऑनलाइन हैं, बैठे हैं, एक साथ बात कर रहे हैं, अपने कहीं भी पैन वर्ल्ड अपने किसी से कनेक्ट कर रहे हैं. तो एजुकेशन 130 करोड़ क्या है, वो इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. ये बात हमें सबको, rather I would like to have an input from everyone, which might be a part of another discussion of ours. Yeah. So okay, एक चीज मैं ऐड करता हूँ. एजुकेशन पे भी we can elaborate maybe tomorrow कि जो एजुकेशन अभी है, is it sufficient? Or probably we have to add more. Yes, Sejal, you had some comment, please. Yes, sir. Yes, I've been trying to speak from a while. नहीं तो हाथ नीचे नहीं करना है ना. Otherwise, I'll say think कि तुम्हारा point किसी ने बोल दिया. Okay. You have to keep trying, sir, keep fighting for your right. Yeah. मैं फर्स्टली क्लोथिंग के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि जो सर ने बोला विलेजर्स को लेके या लोअर ग्रेड पीपल को लेके, सर ये एक मॉरल डेफिशिएंसी है, एंड इसकी वजह से आप किसी का राइट ऑफ फ्रीडम छीन नहीं सकते. एंड मैं रचना मैम से बिल्कुल एग्री करूंगी. A girl should be confident in what she is wearing. Either she is wearing salwar suit or anything. She should be confident in that. और सर मैं हरी सर को एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि मैंने वो पॉर्न वीडियोस वाली बात ऐसी क्यों बोली थी. सर उसका रीजन है, मतलब मे बी सम ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो लोग पॉर्न देखने के हैबिचुअल हो जाते हैं, उन्हें नॉर्मल पॉर्न से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है. So they go for the brutal ones. और brutal ones में ऐसे दिखाया जाता है कि it's giving a pleasure to girls, but it's not the reality. और कहीं ना कहीं वही चीज boys अपनी लाइफ में implement करके, और ये एक cause बनती है रेप के लिए. Maybe I can be wrong, but मैंने इस पे एक छोटा सा स्टडी किया था, उस बेसिस पे मैंने ये पॉइंट बोला. That's all. इस पे मैं बोलना चाहूंगा कुछ. सर एंड विशाल नहीं, रचना जी के इस पॉइंट पे बोलना चाहूंगा. एक बहुत फेमस यहाँ पे टीवी का ये है बिल माहिर, और उसने बहुत अच्छा बोला था. उसने कहा था कि चाहे वो कोई पॉर्न देख रहा हो या वो भी कुछ देख रहा हो ना, या मास्टरबेशन कर रहा हो, तो वो दे आर नॉट एज प्रॉब्लम. वो है कि जो लोग
लोगों की सेक्सुअल कुछ अर्जेस हैं या नीड्स हैं वो पूरा नहीं कर पाते, दे आर द डेंजरस वन। कि किसी को कुछ अच्छा लगता है, जो भी है, सेक्स चाहिए, जो भी चाहिए, खाना चाहिए, बट उसको राइट तरीके से अगर वो ले पा रहा है, यूज कर पा रहा है, खाना लगा तो प्यार से, तुम आराम से ईमानदारी से कमा कर खाओ, भूख लगी पेट भरो, या सेक्स की भी एक भूख है, भूख लगी तो उसको तुम सही चैनल से उसको पूरा करो। लेकिन वो डिस्करेज करते हैं जहाँ सोसाइटीज में, और उसको टैबू बना दिया जाता है, नेगेटिव बना दिया जाता है कि अच्छा ड्रेस नहीं पहनना है, ये देखना नहीं है, वो करना नहीं है। उस सोसाइटी में थोड़ा ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि जैसे निर्भया केस काफी फेमस हुआ था दिल्ली में जो हुआ था, तो निर्भया केस में जो करने वाले जो लोग थे, कौन लोग थे? बस में उन्होंने जो किया, वो लोग नॉर्मल बहुत ज्यादा अच्छे पर मजदूर टाइप के लोग थे, गरीब टाइप के लोग थे, पर उनको उनको ये लगा कि ये हमारा राइट बनता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और उनको प्रॉपर चैनल से उनको उनके सर्कल में उनको सिखाया नहीं गया कि, या उनको कभी एक्सपोजर नहीं था कि आप अपने गांव में भी, अपने शहर में भी, जहाँ भी उस सोसाइटी में भी आप गर्लफ्रेंड बना सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, लड़कियों से बात कर सकते हो। वो जो हंगर क्रिएट कर दिया गया, या डिप्रेविटी की नहीं, लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं है, लड़कियों से बात भी नहीं करना है, वो जो था ना, और वो फ्रस्ट्रेशन या जो भी है उनका, जस्टिफाइबल कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन उसी को उन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से यूज किया। तो एक तो सोसाइटी में चीजों को, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, और ऐसा जैसे बोला कि 1.4 बिलियन हो या 7 बिलियन, एजुकेशन आज के जमाने में बहुत पॉसिबल है। ऑनलाइन चैनल से आजकल टीवी भी एजुकेशन का मीडियम है, टीवी पे भी आप लोग एजुकेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से भी लोग एजुकेट कर सकते हैं, रेडियो से भी एजुकेट कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट से भी एजुकेट कर सकते हैं। तो जो भी कंटेंट आप अच्छा देना चाहते हैं सोसाइटी में, तो यू कैन प्रोवाइड ऑल द कंटेंट थ्रू मल्टीपल चैनल्स। और आजकल गांव-गांव में भी लोगों के पास स्मार्टफोन आने के बाद आ गया है, एटलीस्ट टीवी तो आ ही गया है, पब्लिक टीवी पंचायत वगैरह में होता है, तो लोगों को अवेयरनेस, एजुकेशन दोनों दे सकते हैं। एट द सेम टाइम उसका अदर एस्पेक्ट ये है कि इसको नहीं करने का सजा भी काफी होना चाहिए, कि अगर आपने किसी को गलत तरीके से देखा, टच किया, तो उसकी सजा बहुत सीरियस होनी चाहिए। और बहुत जगह पे होती है कि आपने किसी के बाउंड्री को क्रॉस किया, तो अगर उसने रिपोर्ट किया तो इमीडिएटली पुलिस आप पे एक्शन लेगी, और आपको ये नहीं साबित करना पड़ेगा पुलिस की कि आपने किसी का रेप किया, आपने किसी को अनकंफर्टेबल फील कराया। बस पे भी चलते समय, ट्रेन में भी चलते समय आपने कि सामने वाले को आपने धक्का मारा या आपने गलत तरीके से टच किया, तो वो भी क्राइम है और उसका सजा मिलना चाहिए। तो जब तक पेनाल्टी का डर नहीं होगा लोगों को सजा का, तो लोग नहीं करेंगे। तो आई थिंक काफी स्ट्रिक्ट actions and strict punishment और penalty भी, financial penalty भी मिलना चाहिए, not just जेल की सजा, बट लोगों को उनका घर, स्कूटर, बाइक, जो भी, किसी ने कुछ बाइक से, कोई मान लीजिए कोई लड़कियां भी जा रही है बाइक से, स्कूटर, लड़के भी जा रहे हैं, बट किसी बाइक वाले ने किसी सीटी बजा दिया, कुछ गलत कर दिया, तो उस बाइक वाले की बाइक जब्त कर देनी चाहिए उसको। फिर जैसे ट्रैफिक का फाइन मिलता है उसको, इस हरासमेंट के लिए फाइन नहीं आना चाहिए। इस तरह के जो इंसेंटिव्स और पनिशमेंट्स आएंगे ना, तो आई थिंक सोसाइटी में थोड़ा चेंज जल्दी आएगा। ओके, मिस्टर सर रवि इस वांट्स पर टू। से हाँ बोलो सजल, बोलो। इस पर से काफी सारे लॉज हैं। इवन एक लॉ ऐसा भी है कि अगर आप एक लड़की को 10 सेकंड और सम नंबर ऑफ सेकंड से ज्यादा स्टेयर भी करते हो, तो अ गर्ल कैन फाइल अ केस। बट ये है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सो लॉज तो हैं, इंडिया में काफी सारे लॉज हैं, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना प्रॉपर नहीं है, इसलिए, और लोगों को नॉलेज नहीं है। मेन चीज, जब तक उस चीज की नॉलेज नहीं होगी आप उन्हें इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे। किसी भी लड़की को नहीं पता होगा कि स्टेयरिंग पे भी एक लॉ है। और जिसको पता होगा for that girl will harassed if she puts such a complaint, वो सोसाइटी वाले उसको harass कर करके they'll just kill the whole sentiment out of the thing. Yes, ma'am, I can totally agree to you। जो रेप केसेस होती हैं उनको लॉयर्स ही हरास कर दे, तो वहीं पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग। ओके, मुझे
on a lighter note, males से इतने गुस्सा क्यों आप? To Preeti ma'am, am I audible? हाँ जी बोलिए। जी मैम आपने अभी जैसे like you raised the thing like the prostitution must be legalized. So just on the maybe this can be taken forward sometime, but इसपे से how it is going to help the society, because legalizing this thing, I'm not sure like it is going to help, because even in countries जहाँ पे ये legal है, so is it that there are no instances of rape in Thailand or no instances of rape in Germany? So ये अब मैं थोड़ा सा इस पे मुझे clarity नहीं है. I can answer this question. I can also answer. हाँ बोलिए. So ये अलग दिन रखना पड़ेगा क्या? So I don't have any clarity ठीक है, on इसको- this thing. मैं इसको- प्रीति मैम के discuss साथ करते में हैं। हूँ, मैं प्रीति मैम के साथ में खड़ा हूँ, so I would like to answer if you allow प्रीति मैम. श्योर। और मैं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सौरभ और भी प्लीज मुझे चलो एक लाइन में खत्म। और भी मुझे दो कुछ लाइनें चीज बताओ। ऐड करना है। अच्छा और भी चीज ऐड करना हाँ Okay. यार विशाला बहुत हॉट टॉपिक लाते हो यार। Please. Okay. So even I am in बोलिए सर, favor बोलिए। of मैं फेवर में ही हूँ ये सब चीजों के, because there is a very thin line of like whether it is legal or illegal, ये चीज आज भी लोगों को पता नहीं है। काफी इंडिया में जो लॉज है, as per Indian laws, you can if a girl is above 18 and she wishes to do something in favor of exchange of money, she can do that, but only thing is she should not be a public figure, she must not be having a reputed job. ऐसे कुछ कंडीशंस उसमें डाल दिए गए हैं कि वो कंडीशंस में आप ये सब नहीं कर सकते हो। बट अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और यू वांट टू अर्न मनी एंड you are like of a legal age, you can do that in India. So another thing is pimping is illegal in India. तो ये भी जो चीज है, अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने की बात करते हो तो व्हाट विल बी अबाउट पिम्पिंग? So pimping is illegal totally in India. Even prostitution is illegal on a large scale. So ये थोड़े से चीज मुझे ऐड करना था, फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि how this gonna help us कि gender equality में, या maybe reducing the crime against women, how this really helps. I'm not sure about that thing. Yes please sir, हाँ बताओ। Okay. You can start the So discussion. I'll take some inputs from Atul sir also. उन्होंने बहुत valid point बोला। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो रेप और ये जो गलत एक्टिविटीज हो रही हैं फ्रॉम द मेल साइड, ये क्यों हो रही हैं। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फंडामेंटली ये क्यों हो रही हैं। क्योंकि एक मेल का नीड है, मेरा भी एक नीड है, लेकिन आई डोंट गो टू द एक्सट्रीम स्टेप। आई हैव अ चैनल टू फुलफिल माय नीड्स। विशाल आल्सो हैज अ नीड, और एवरीबॉडी इन दिस फोरम हैज नीड्स, आइदर मेल और फीमेल। नाउ वो नीड का मेरे को सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम है मेरे को उसका सोल्यूशन चाहिए। अब किसी के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, he cannot live without a solution. किसी के लिए प्रॉब्लम छोटा सा है तो वो उसको नहीं भी सोल्यूशन मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन फॉर अ साइको और फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन जो एकदम पागल है और उसको चाहिए ही चाहिए इन एनी केस, और उसको अगर नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, उसका इतना बैकवर्ड है कि सेक्स टैबू है और गर्लफ्रेंड होना टैबू है, एंड देयर इज नो सोल्यूशन टू इट, there is no this thing, ambience वैसा नहीं बना हुआ है। in that case आपको prostitution legal करना पड़ेगा, because those kind of people exist in the country. So if you want to eradicate this disease, तो कुछ लोग तो या तो आप डर के मारे करो, जैसे सर ने बोला कि भैया लॉ पास कर दो, गोली मार दो, जो भी कर दो, जैसे बाहर के कंट्रीज में, अरबिक कंट्रीज में होता है कुछ। या तो आप डर से नहीं करोगे वो काम, या तो आप करोगे काम तो आप लीगल कर दो। तो मेरा यही आंसर है कि प्रोस्टिट्यूशन इस वजह से लीगल होना चाहिए, बिकॉज नीड तो रहेगा। आप नीड को किल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते थे भैया कि तुम अपने नीड को सफाइज मत करो, यार नीड तो नीड है ना।
the sort of need, जैसे हमारे खाने की नीड है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, जान जा रहा है, तो वो तो किसी और को के खाना छीन के भी खाएगा, जान में लेके कुछ भी करेगा, चोरी करेगा, डकैती चोरी करेगा। कर रहे हैं Agree लोग, with that. पैसा नहीं है तो चोरी कर रहे हैं। हाँ, और जबकि दूसरी बात इलीगल है, फांसी है और उम्र कैद है, और दूसरी बात की अरब कंट्रीज का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ये सेक्स का प्रॉब्लम। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ ये चीज रिपोर्ट नहीं होती है। वहाँ पे जो सेक्स है या वहाँ जो मेल है, जो भी वहाँ पे अरब कंट्रीज में है, तो फीमेल है जनरली 90% of the females, 90% I'm saying, very high percentage, they are literally living like a sex toys for the guys वहाँ के, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है, as per the law, as per the वहाँ की सोसाइटी के नॉर्म्स है कि कानूनी तौर से इट्स ओके टू डू व्हाट बाकी जगह पे सोसाइटी में अलाउड नहीं है। लेकिन आप जॉर्डन एक कंट्री है बहुत अरेबिया का ही, वहाँ काफी पूरे वर्ल्ड के लिए वेकेशन के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते थे। शायद बहुत सारी हिंदी फिल्म शूटिंग हुआ है, इवनिंग इन पेरिस, वो सारी जॉर्डन में शूटिंग हुई। तो बहुत सारी कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी काफी एडवांस थी, ये थी, बट लास्ट कुछ 100 सालों में ये चेंज हो गया है। कुछ चीजों को टैबू कर दिया गया है और प्लस कुछ चीजों को कुछ प्रिविलेज लोगों तक ही दे दिया गया है कि आप फलाना शेख के फैमिली में हो या आप मेल हो तो ये सब प्रिविलेजेस आपको मिलेंगी। एंड वुमेन, उनको कोई राइट ही नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। अभी तो उनको लास्ट कुछ साल पहले तो उनको ड्राइविंग का पहली बार ड्राइविंग अलाउ किया, जहाँ ड्राइविंग अलाउड नहीं है, बहुत सारे उनके राइट्स एंड लिबर्टी छीनी हुई है। तो वो प्रॉब्लम है सोसाइटी में। एंड आई थिंक जिस सोसाइटी में कम है, एम्स्टर्डम लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है, सब कुछ है। बहुत सारे नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में बहुत एडवांस है वहाँ पे, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है। वहाँ भी हरासमेंट होता है, वहाँ भी रेप होता है, लेकिन आप परसेंटेज देखोगे तो परसेंटेज जो बहुत ही गरीब इलाका है वर्ल्ड में, अफ्रीका में बहुत ज्यादा होता है, और इंडिया में भी उन पॉकेट्स में ज्यादा होता है जहाँ की काफी ज्यादा डिस्पैरिटी है। और लॉ ऑर्डर का इन्फोर्समेंट भी काफी डिफिकल्ट है, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है टू मॉनिटर या टू इवन प्रोसिक्यूट द क्राइम। तो वो भी एक रिसोर्सेज, रिसोर्स डिप्राइवमेंट भी एक रीजन है मेरा मानना। ठीक है, आज का टाइम ओवर हो गया है, मैं इसी पे पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। So I think we talked about education and the change at the very fundamental to change this mindset. But having said this, I at a personal level would also challenge the education system itself. जो अभी education है यही चलते रहेगा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला खास, होगा धीरे धीरे होगा। So we need some probably some add-on or some kind of modification at the very fundamental education, maybe at a preschool level, at a class 1 class 2 level, jahan pe we have to change something very drastic that can do this. Rachna, you have a comment, please? Yeah, I mean, I think we are only putting in the women in the perspective. I'm sorry, but I am also here concerned about a section where men are also into prostitution for the same. So are we talking prostitution in a manner where it is a legal source of earning for both men and women, or what? I mean, are we aware that the cases are just related to women in that? Yes, today I think Calcutta has a red light area which houses a lot of women, but there are, so to understand where is this coming from is very, very important. And at what age does one get into it is very important. Can I answer this? See, yes, when I said about prostitution was, it is not per se a female or a male. It is prostitution, whosoever is doing it. It's never a male or a female. Then second thing is, see, right now, if there is a person who's into prostitution, so let's say out of 100% income from the client, I think she doesn't even get 40% in her pocket, because there's a policeman there and then there's a pimp there. So if it is legalized in a fantastic way, so at least that earning will go to that person. That was one thing. And of course, the other things are like, when we were talking about the sexual harassment for women or men in the society, the sexual harassment, that will definitely come down, because each section has their needs, their requirements. And if it's not a taboo, it's legalized, then of course it's the extent of taboo can start reducing.
you know, maybe not in our generation, probably the next few generations may be less sexually harassed. So the change cannot happen overnight. It has to be raised, it has to be addressed. Like, you know, cooperation is forever, so change is forever. It has to happen. So that was the whole point of me putting across this point. Preeti, but I'm just wanting to make a point, one more thing, that prostitution is already legal in India. Why are we having this conversation? Why to make prostitution? Prostitution has been legal in India since the olden times, when there was proper brothels were there at that point of time, where there was proper I think जो हमारे जो पुराने टाइम पे हम जिसको बोलते हैं ना तवायफ कोठा and all of that, वो उस टाइम से लीगल पे. It is the oldest profession. Human, yeah, it is one of the oldest professions. And what is not legal is pimping is not legal. आप किसी का human trafficking is not legal. You cannot force somebody to get into prostitution is not. So probably I made a mistake on saying that. Maybe it is legalized. I honestly don't know, because my understanding was there hardly any laws around it. एक अलग GD पे discuss करते हैं. ठीक है, I think it's a big topic in itself. ठीक है, ये 2-4 मिनट में नहीं होगा, पता चला हम लोग 2-3 बजे तक बैठे रह गए. Or child sexual abuse, another topic Vishal you can think about. Sure. Yeah, so like tomorrow let's talk about the education reforms which can reduce this discrimination, and then we can add on more and more. I think ये ना 1-2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, ये चलेगा अच्छा खासा. Let's see कब तक चलता है, जब तक है जहाँ. चलिए then. Okay, good night today. Let's meet tomorrow 10. Good night, bye. Take care. Good night all. Bye bye. Good night.